चाहे आप अध्यापक बनो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, कोई भी बनो, एक एक्सपर्ट मां बनो पहले तो वो जरूर है। Hello everyone. Today we are going to talk about UP Governor Miss Anandiben Patel problematic speech during CSJMU convocation. On 9 July 2026, CSJMU Kanpur held its 41st convocation on which Miss Anandiben Patel said something so ridiculous that everyone has to say only one thing. ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? Nowadays, it's a trend to demean the girls and tell them what they should choose, what they should do, what they shouldn't do. Just before someone there was an auntie. Then her video went viral, and then she came again to tell that she was getting harassed by people, then she drinks poison, and then all that thing media covered up all that. But it's quite heartbreaking to see these types of norms getting promoted by Miss Anandiben Patel, who herself is Gujarat's first woman governor, and her daughter Anu Patel is a social entrepreneur. She has won 10 plus awards in many areas, even though after being this much successful, and even after being a victim of the system itself, she promotes the system. She is promoting the norms of all the system. Motherhood is a very good thing. It's a blessing. But during convocation, promoting motherhood and cooking, that too only for one gender, just so their internalized patriarchy. After seeing such people, I think even after being this much successful, why the hell they are promoting such norms? Then I researched online and I researched on YouTube and platforms like Insta. And after that, I have came to three main reasons for it. The first and the main reason for it is internalized patriarchy. After being this much successful, they are telling women that being an IAS and IPS officer is in vain. If the girl is not able to cook, just show their internalized patriarchy that even though in big 2026, girls are getting linked by only cooking. And the second main reason is Queen Bee syndrome, which is explained very beautifully by an influencer called Nimitic Talk, who has 99K followers. See how he बेटी का explained ब्याह it. होगा और पहले दिन जाएगी, बेटा हलवा बनाओ, वो मोबाइल खोलती है, इसमें देखती है और हलवा बनाती है, कच्चा पक्का जैसा हुआ है। परिवार में जो खाना बनता है वो तो उसका आना ही चाहिए, चाहे आप अध्यापक बनो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, कोई भी बनो, एक एक्सपर्ट मां बनो पहले तो। यूपी में बोला जा रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया और इन्होंने सरेआम कानपुर में आयरनी की हत्या कर दी, वो भी एक बार नहीं 10-15 सेकंड में 3-4 बार। पहली बार तो तब जहां पर ये स्टेटमेंट दी गई है उस स्टूडेंट कॉन्वोकेशन में 82% मेडल्स विमेन को मिले हैं। बेचारे हम मेन एकेडमिकली भी एवरेज रह गए और कोई हमें एक्सपर्ट फादर बनने के लिए गाइड भी नहीं कर रहा। ऐसा ही चलता रहा ना तो घर के रहेंगे ना घाट के। आई मे लुक नॉर्मल बट अंदर ही अंदर मुझे मर्दों की फिक्र सताई जा रही है। और ये पता नहीं किसको बुला लिया इवेंट पर, ये गुजरात की एक्स सीएम है और करंट यूपी की गवर्नर है। कोई ऐसी वुमेन को ढूंढना चाहिए ना ऐसे इवेंट्स के लिए जिन्होंने लाइफ में सच में कुछ किया हो, जैसे कि एमएससी और एमएड में अपने दोनों में गोल्ड मेडल लाया हो, फिर 31 साल टीचिंग करी हो, फिर मेहनत से प्रिंसिपल बने हो, फिर देश की राजनीति में आई हो, फिर अपने स्टेट की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनी हो, और इतना ही नहीं फिर अपनी बेटी को भी इतना पढ़ाया हो कि वो भी सोशल एंटरप्रेन्योर बन जाए, और परवरिश इतनी स्ट्रांग हो कि उनकी बेटी भी लंदन से पढ़कर एक्टर और एंटरप्रेन्योर बन जाए। किसी ऐसी महिला को बुलाना चाहिए था ना इस इवेंट में। ओह वेट, वी नीड जस्टिस फॉर आयरनी। बहुत गलत हुआ उसके साथ। मुझे लगता है कुछ लोगों को ना सासुमा सिंड्रोम है, एंड आई थॉट मैं इसको जोक की तरह बोलूंगा बट इट्स एन एक्चुअल थिंग इन साइकोलॉजी। इट्स कॉल्ड क्वीन बी सिंड्रोम। 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कुछ रिसर्चर्स ने इसको नाम दिया था। मतलब जो औरत एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में लड़ाई कर ऊपर पहुंचती है, वो अपने से जूनियर औरतों को बहुत ज्यादा जज करती है, उनसे दूरी बना लेती है, सेक्सिज्म को डाउन प्ले करती है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लोग विलन नहीं है, ये लोग सेम सिस्टम के शिकार हैं। सोचो वो उस सिस्टम में ग्रो करी है जो सिस्टम विमेन के लिए ब्रूटल था। इन्होंने डबल मेहनत करी है टू गेट व्हाट मेन कुड इजीली गेट।
काफी पेन और काफी स्ट्रगल रहा। अगर ये लोग मान लें कि सिस्टम गलत है तो इनका पेन और स्ट्रगल मीनिंगलेस हो जाएगा, पर्पस ही नहीं बचेगा ना इतने पेन और स्ट्रगल का। इसलिए सम पीपल स्टिक टू द स्टोरी कि जो स्ट्रगल जो पेन इन्होंने सहा वो बहुत जरूरी था लाइफ में, एंड सबको उस जर्नी से निकलना ही चाहिए टू बिकम व्हाट दे आर टुडे। क्योंकि जो पेन प्रोसेस नहीं होता वो आगे पास ऑन होता है। इसलिए हेट वेट ना करो किसी को, पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, वही बेस्ट तमाचा है इस सिस्टम को। I like his way of explaining very much. For more content, like and do follow him. And the third main reason for this is their generational habit of controlling. This also is a smart first video, so I hope you like it. I know the editing is mid-level and beginner level, but I am learning. If you like the video, do subscribe and like the video. I am going to make more videos on these type of topics in future. For now, good morning, good evening, good night. Sayonara. In case